Good morning. So in last lecture we have completed the design of stem part, and for this design of stem part we have the vertical reinforcement at tension side, that is 20 mm at 200 mm center to center, and the distribution steel, or you can say the compression side reinforcement, and the horizontal reinforcement that are 12 mm diameter at 290 mm center to center. So this design we have completed in the last lecture, and I have told you that this is the separate design of stem. Right now, so the stem reinforcement should pass through the other member also, so that it will give the proper bonding of stem and the base layer. So the reinforcement will pass from here to here. Right, so this reinforcement should pass from the stem to the heel part. Now, how much bar should be extended from the stem part into the heel? So that will be the LD length. Now here, LD length is nothing but this. LD is nothing but development length. This is called the development length. Right. Now how to get this development length? So in IS 456, the equation for the development length is given. What should be the length extended? So this is the clause number 26.2.1, and this is the equation to find the development length. So LD is equal to 5 sigma s divided by 4 tau BD. So this is the equation to find the development length, right? And this is available. This is available close 26.2.1 IS 456, right? So by this equation you can find the length. Now here in this equation, this phi is the diameter of bar that you are going to extend it. So the diameter of bar. Then this is the sigma s, that is stress in bar. So stress in bar sigma s you require to take as 0.87 F5. 0.87 F5. Right. Then dia is diameter of bar. Dia of bar. Right. Now coming to tau BD. Now this tau BD is known as bond stress. This is known as bond stress. So how to get the bond stress? So this you can get from 26.2.1.1. So here the table is given 26.2.1.1. Right. So you can get close 26.2.1.1. Now see over here what is given. Here it is mentioned design bond stress in limit state method for plain bars. So this value varies with respect to grade of concrete. Here is the grade of concrete, and the tau BD value is given for the plain bars. If you are using FE 250, then you can directly take the tau BD value as per your grade of the concrete. Like if it is M20, then 1.2. If it is M25, then 1.4. But if you have used the HYSD bar, high yield strength deformed bar, then here it is mentioned that for deformed bar this value shall be increased by 60%. So whatever this 1.2 value, this 1.2 value will be this 1.2 value will be increased by 60%, right? So the for M20 grade of concrete, the uh, tau BD value will be 1.92. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Right, so this value will be increased. So 1.2 plus this value will be increased by 60%. Right, so 60% of 1.2
so 0.72, right? So the for M20 and HYSD bar, the tau BD value will be 1.92, right? So this will be your tau BD value for HYSD bar, right? Now this value, this is given for the tension steel. So if you are extending your reinforcement LD और you are finding LD value for the tension reinforcement, ये टेंशन का बार है, तो अगर इसको आप एक्सटेंड करते हो तो ये वैल्यू लेनी है आपको 1.2, ये डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, एंड इफ इट इज HYSD बार तो 60% इंक्रीज करनी है. बट अगर आप कंप्रेशन के लिए टाउ बी डिफाइन करते हो, कंप्रेशन के लिए मीन्स इफ यू आर फाइंडिंग द यहाँ से लेके यहाँ तक का LD लेंथ, कंप्रेशन का बाद भी आपको एक्सटेंड करना है, सो दिस इज ऑल्सो LD. तो अगर आप कंप्रेशन इन्फोर्समेंट को के लिए डेवलपमेंट लेंथ फाइंड करना है तो फर्दर दिस वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर द बार इन टेंशन विल बी इंक्रीज बाय 25%, राइट? तो अगर आपका प्लेन बार है पर कंप्रेशन के लिए कर रहे हो एंड इफ इट इज M20, तो आपकी टाउ BD की वैल्यू क्या होगी 1.2 प्लस 25% ऑफ 1.2 कितना होगा 0.3, सो 1.5, ठीक है, न्यूटन पर mm². बट अगर आपका यही बार, ये कंप्रेशन का ही बार अगर HYSD होगा, माइल्ड स्टील की जगह HYSD, सो अगेन दिस वैल्यू विल बी इंक्रीज बाय, HYSD के लिए कितना इंक्रीज करना है 60%, सो 1.5 का 60%, तो 0.9 फिर से ऐड करना है, so the final value of tau BD will be 2.4. Is it clear everyone? Yes, ma'am. Right, so this will be your MCQ kind of question, right? So if it is given that find out the bond stress for a tension reinforcement and for a grade of steel as Fe415 and grade of concrete is M25, तो फिर आपको इस तरीके से you can get the value. और कंप्रेशन के लिए बोला है तो एडिशनली दैट 25% will add. Is it clear everyone? Yes, ma'am. Then this clause 26.2.1.2 bars bundle in contact. Now what is bundle bar? Here we have provided a single diameter of bar like 20 mm diameter bar. Somewhere you can, the designer may provide the bunch of the bar like this 12 mm diameter, this is also 12 mm diameter, right? This is also 12 mm diameter bar and this one is also 12 mm. So all this 4 diameter of bar 12 mm will form a single diameter, and that reinforcement is provided in your column or in your beam or any of the reinforced concrete element. मतलब ऐसे सिंगल बार की जगह ऐसे ग्रुप ऑफ बार लगाया है, 1 2 3 4 यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ. This is called the bundles bars. So if you are extending this bundle bars for the development, अगर आपको ऐसे एक not a single bar but the group of bar if you required to extend for the development length, तो यहाँ पे क्या लिखा है that the development length for each of the bundle bar shall that of individual bar increase by 10% for 2 bars in contact, 20% for 3 bars in contact and 33% for 4 bars in contact. तो अगर सपोज ये 12 mm डायामीटर बार को आपने बंडल किया है 4 बार को, तो इसकी लेंथ, इसकी डेवलपमेंट लेंथ कितनी होगी 33% मोर देन द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द 12 mm डायामीटर बार. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, मतलब एक 12 mm से आप LD लेंथ फाइंड करो ये इक्वेशन में से, उसका 33% इंक्रीज करके आपका ये 4 की डेवलपमेंट लेंथ होगी. सेम वे 3 हो, अगर 3 बार को बंडल किया हो तो 20% इंक्रीज करनी है.
अगर 2 को किया हो तो 10% इंक्रीज करनी है. सो दिस वे you can get the value. Then अभी ये जो आप कर रहे हो यहाँ पे हमें जो एक्सटेंड करना है, राइट. तो अगर आपका जो बीम है तो बीम में ऐसा एक्सटेंड होता है. सपोज ये बीम है और ये बीम का टेंशन रेनफोर्समेंट है. तो अभी यहाँ से मेरा बीम खत्म हो गया, यहाँ पे तो सपोर्ट है. इसको मुझे डेवलपमेंट लेंथ देना है, तो डेवलपमेंट लेंथ यू कैन प्रोवाइड बाय 2 ways. One by bending bends and second by hooks. तो बेंड्स क्या है? द एंकरेज वैल्यू ऑफ बेंड शैल बी टेकन एज 4 times द डायमीटर बार फॉर ईच 45 डिग्री बेंड, राइट. तो 45 डिग्री बेंड मतलब यहाँ से 45 डिग्री एंगल का ऐसे बेंड कर दिया जाएगा आपके बार को.
Hello student, there was a power cut. So again I am sharing my screen. Are you all there? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So we have seen this. Okay, so talking about the hook and the bends, right? So here in IS 456 you can see the anchorage is provided with respect to bends and hooks. So bend is 45-degree bend. So how you can do the 45-degree bend? Once once the reinforcement are extended, right, and then after you can have the 45-degree bend like this at the end. So this must be 45 degree, right? So if it is 45-degree bend, so the anchorage value of this bend shall be taken as 4 times diameter of bar. So 4 times diameter of bar. So ये यहाँ पे जितना ये बेंड हुआ है, सपोज ये है आपका बार, तो यहाँ से लेके ये जितना 45 डिग्री एंगल पे जितना बेंड हुआ, तो ये जो है इसको बोलते हैं एंकरेज लेंथ. दिस इज कॉल्ड द एंकरेज लेंथ ऑफ 45 डिग्री बेंड, राइट. ये 45 डिग्री है आपका. तो ये जो लेंथ है वो कितनी लेनी है? 4 टाइम्स डाया. और मैक्सिमम कितनी ले सकते हो? 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार. सो 4 टाइम्स डाया और मैक्सिमम 16 टाइम्स डाया, बराबर. तो अगर ये लेंथ आपका 12 mm का है तो आपका होगा, कंसिडर द लेंथ इज 48 mm. एंकरेज लेंथ, एंकरेज लेंथ 48 mm होगी, राइट. So generally this type of anchorage you can see at the time of beam design में देखते हैं. And hook, the standard hook U type hook. अब अभी hook कैसा होता है? देखो यही है, सपोज ये है मेरा बीम. तो हुक कैसा होता है? सपोज दिस इज माय टेंशन reinforcement. तो U टाइप मतलब ऐसा होता है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड द हुक. और थर्ड type of anchorage can be provided in beam or in slab also is 90 degree bend. So 90 degree bend मतलब यहाँ exact 90 degree पे ये bend होगा. Is it clear everyone? तो ये है हमारा 90 डिग्री एंगल. तो यहाँ पे देखो हमारा एंकरेज कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है. तो ये एलडी लेंथ हमें फाइंड करना है और ये हमने लिया है 90 डिग्री बेंड. तो ये जब भी बेंड होता है, देखो ये बार आपका बेंड कैसे कैसे एक्सटेंड होगा? यहाँ से एक्सटेंड होगा, फिर यहाँ से ये बेंड होगा और उसके बाद फिर से ये एक्सटेंड होगा. तो ये जो पूरी लेंथ है, दिस लेंथ इज नोन एज डेवलपमेंट लेंथ. पूरी लेंथ को डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का, राइट. और जो बेंड आपने प्रोवाइड किया है 90 डिग्री पे या 45 डिग्री पे या आपने यू टाइप किया है, तो ये जो है इसको बोलते हैं, इतनी लेंथ को एंकरेज लेंथ.
बैंड का। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो अगर आपका बार स्ट्रेट है और अगर आपने ये बैंड किया है तो ये लेंथ चेंज हो जाएगी, तो इसलिए दिस वे यू कैन गेट द एंकरेज लेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। नाउ दिस डेवलपमेंट लेंथ यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन एज डिस्कस। तो अगर हमारा है यहाँ पे 20 mm डायमीटर, इफ आई वांट टू फाइंड द LD लेंथ, सो डायमीटर इज 20 mm, 20 into sigma s is 0.87 f5, my f5 is I think 415 हमने लिया था आगे, और 4 इंटू टाउ वी डी। चलो टाउ वी डी क्या होगा हमारा यहाँ पे, M20 आई थिंक M25 है, M25 ही है ना आगे, क्या आपको याद है किसी को? व्हाट वाज अवर ग्रेड ऑफ कंक्रीट? इसके लिए हमने, हाँ हाँ यहाँ पे लिखा है M20 मैम Fe415। एम हाँ M20, तो देखो ये M20 के लिए है, so this is 1.2, but our is HYSD bar, so that will be increased by 60%, so 1.2 का 60% आपको करना है, क्या होगा हमारा ये वैल्यू, मैंने आगे लिखवाया था 1.9 समथिंग, 1.92 हाँ 1. 92 हाँ 1.92, so directly I am writing 1.92 over here. चलो फाइंड करो डेवलपमेंट लेंथ LD। Nine 40.23. Nine 40.23. So this is development length to be provided, right, for this tension reinforcement यहाँ का। अभी this you can directly get from SP16। SP16 में आप ये लाइन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो विदाउट यूजिंग दिस इक्वेशन, बिकॉज SP16 इज अ टेब्यूलर फॉर्म ऑफ ऑल द इक्वेशन डिराइव्ड इन 4, 5, 6। तो यहाँ पे देखो डेवलपमेंट लेंथ का ये है, पेज नंबर आपको देखना है 183। तो अगर आप पेज नंबर 183 पे देखोगे तो यहाँ पे क्लॉज है और सेम इक्वेशन इज रिटन ओवर हियर, राइट। और यहाँ पे टेबल्स, टेबल नंबर 64 क्या है, डेवलपमेंट लेंथ फॉर फुल्ली स्ट्रेस प्लेन बार। तो ये जो टेबल है वो प्लेन बार का है, मतलब Fe250 का, ठीक है। तो बार डायमीटर जो भी लिया होगा आपने, अगर आप टेंशन के लिए LD फाइंड करते हो तो यहाँ से वैल्यू लेनी है फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट, अगर कंप्रेशन के लिए LD फाइंड कर रहे हो तो यहाँ से लेना है वैल्यू, राइट। सो दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ LD इन सेंटीमीटर, आपको यहाँ से सेंटीमीटर में मिलेगा, ये सब वैल्यू सेंटीमीटर में है। अगर आप HYSD बार के लिए करते हो, HYSD बार आपका Fe415 है, ठीक है। तो देखो हमने टेंशन के लिए फाइंड किया, अवर इज M20, अवर ग्रेड ऑफ डायमीटर ऑफ बार इज 20। तो यहाँ पे देखो कितना वैल्यू दिया है LD का, 94 सेंटीमीटर। तो mm में क्या होगा, 940 mm, और हमने यहाँ से भी लिया तो भी कितना है, 940। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस वे यू कैन डायरेक्टली फाइंड द LD बाय इक्वेशन ऑल्सो एंड फ्रॉम SP16 ऑल्सो। सो दिस LD इज 940 mm। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये जो बार है एक्सटेंड हुआ है, अभी हमें बोला है कि ये इतना LD लेंथ है हमारा 940, तो हमें बार को स्ट्रेट करके 90 डिग्री पे बेंड करना पड़ेगा या फिर बार को स्ट्रेट रख के सिर्फ डायरेक्ट एक हुक प्रोवाइड करना है, वो कैसे पता चलेगा, दैट विल बी कंसीडर डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ दिस
स्टेम की डेप्थ में से हमें पता चलेगा, राइट। सो व्हाट इज द स्टेम डेप्थ, क्या था हमारा स्टेम डेप्थ 0.45 आई थिंक। डेप्थ ऑफ स्टेम यस मैम, 0.45 यस। है। देखो तो अभी मैं एक आपको यहाँ से सिंपल एक ड्रॉ करती हूँ कि ये है आपका स्टेम एंड फ्लैट। अभी बार को कैसे आप एक्सटेंड करोगे, ये बार यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। अभी मुझे 940 की लेंथ पे उस कोड बार को एक्सटेंड करना है। मेरे पास अवेलेबल डेप्थ कितनी है, ये डेप्थ है मेरा 0.45, राइट। अभी स्टेम ये जो बेस स्लैब है वहाँ पर भी रेनफोर्समेंट आएगा, बॉटम में भी आएगा, और उसके ऊपर स्टेम का डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी आएगा अदर डायरेक्शन बार, तो ये ऐसा आएगा, बराबर। तो आप जो बार एक्सटेंड करने वाले हो स्टेम का, वो इसके ऊपर से एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो ये बार अगर मुझे एक्सटेंड करना है तो ये बार कहाँ से एक्सटेंड होगा, यहाँ ऐसे जाके यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना पोर्शन ये वर्टिकल होगा और कितना ये एक्सटेंड होगा, ये मुझे अगर फाइंड करना हो तो वो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे अवेलेबल डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अवेलेबल डिस्टेंस इन बेस स्लैब। बेस स्लैब में अवेलेबल डिस्टेंस कितना है, तो देखो तो ओवरऑल डेप्थ इज 450 mm, राइट। इसमें से यहाँ का मैं कवर माइनस कर देती हूँ, तो कवर मैं इसके लिए ले रही हूँ रिटेनिंग वॉल के लिए 30 mm, क्योंकि स्ट्रक्चर है तो उसका ज़्यादा होगा। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि दैट दिस डायमीटर ऑफ बार इज ऑफ माई 16 mm डायमीटर, तो ये मैं 16 mm का डायमीटर भी माइनस कर रही हूँ। माइनस ये मेरा सेकंड लेयर ऑफ बार यहाँ पर, इसको सपोज मैं 12 mm डायमीटर ले रही हूँ, -12। चलो ये कितना है डिस्टेंस, कितना मिला मुझे अवेलेबल डिस्टेंस इन बेस स्लैब, 392 mm। तो जो अवेलेबल डिस्टेंस इज 392 mm, राइट। तो ये जो मेरा वर्टिकल जो मैं एक्सटेंड करने वाली हूँ, वो मेरा वर्टिकल एक्सटेंड होगा 392 mm। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये जो Yes. स्ट्रेट जो एक्सटेंड होगा वो 392 होगा, बट हमें कितना चाहिए, हमारा डेवलपमेंट 940, राइट। तो मुझे कितना चाहिए, 940 चाहिए। तो अभी 940 फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे। सो 940 माइनस 392, 548। सो 548 mm मेरा एक्सटेंड होगा हॉरिजॉन्टली। क्लियर एवरीवन? तो फिर मैम ये तो कंप्रेशन जोन में भी चला जाएगा ना, क्योंकि 450 है। क्या चला जाएगा? हाँ हाँ मैम ये, हाँ हाँ, हाँ। आगे चला जाएगा, यस, आगे चला जाएगा। As soon as you are taking the higher diameter of bar, LD length भी उसकी ज़्यादा होगी, ओके मैम। ठीक है। चलो, so this way you will get the total detailing of your stem part। वैसे ही आपको फाइंड करना है कंप्रेशन के लिए, तो LD फॉर कंप्रेशन रेन्फोर्समेंट। चलो कितना होगा, डायरेक्ट यहाँ से ही फाइंड कर लेते हैं। देखो कंप्रेशन के लिए चाहिए M20, और डायमीटर कितना है हमारा कंप्रेशन का, 12 mm,
ठीक है, तो M20 और 12 mm के लिए सी दिस 45.1, सो कितना होगा 451 mm। तो ये जो लेंथ है यहाँ पे दिस इज 451 mm। क्लियर एवरीवन? मैम एक बार वो लेंथ दिखाओ ना कंप्रेशन में। ये कंप्रेशन में के लिए यहाँ से पढ़ लेना है टेबल में से। ओके मैम। ठीक है, तो अगर आपको इक्वेशन यूज करना है देन यू कैन यूज इक्वेशन आल्सो, बट दिस वे दिस विल बी वेरी इजी एंड क्विक सॉल्यूशन। अगर आपका FE 500 है तो उसके लिए भी टेंशन और कंप्रेशन के लिए टेबल दिया है। ठीक है, यस मैम। अभी वो डेवलपमेंट लेंथ में ये एंकरेज लेंथ कितना है तो उसके लिए भी यहाँ पे टेबल दिया है। देखो, अगर आपका 20 mm डायमीटर बार है और आपने हुक प्रोवाइड किया है, राइट, हुक मतलब ये ऐसा, तो वो हुक का लेंथ होगा 3 to 32 सेंटीमीटर, मतलब 320 mm। तो ये जो है यहाँ का वो 320 mm है। अगर 90 डिग्री लिया है तो 16 सेंटीमीटर, तो 160 mm। ठीक है, फिर ये हुक करने के बाद जो एक्सटेंशन पोर्शन है बार का, आप किसी भी चीज़ को कर्व करके छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंशन देना पड़ेगा बार को, रेनफोर्समेंट को। तो ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम 4 डाया, जो मैंने आगे बताया था वो 4 टाइम्स डायामीटर। तो ये एक्सटेंशन होना चाहिए 4 टाइम्स डायामीटर। यहाँ पर भी देखो 90 डिग्री बैंड है, तो 90 डिग्री बैंड ऐसे होगा। ठीक है, तो कर्व लेंथ आपको मिल गया है यहाँ पे। कर्व लेंथ क्या है 90 डिग्री, अगर 20 mm बार करते हो तो 16, तो 160 mm। तो ये जो लेंथ है ये 160 mm है, और उसके बाद इसको आपको एक्सटेंड करना है 4 टाइम्स डायामीटर। तो अगर 20 mm है तो 4 इंटू 20 mm, सो 80 mm की लेंथ आपको एक्सटेंड करनी है कर्व के बाद। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। Right, so this is called the anchorage value of hook and bend. So this way the design of your stem part is over. If you have any query you can ask right now. Hmm? नो डाउट मैम। No doubt? Okay, now next we will start with design of heel slab for cantilever retaining wall. ठीक है, अभी हम heel slab की डिज़ाइन करते हैं, स्टेम की डिज़ाइन हो गई। Now for heel slab, what you require to do is you require to check that how many forces are acting on the heel part. So this is my retaining wall, right? This is the length view. Now can anyone tell me the dimension of this retaining wall? What is height of stem? मैम 4.75 मीटर। Height of stem is 4.75 meters. What is length of heel slab? 0.75, नो 1.8 मीटर। This is 1.8 meter. Depth of heel slab डेप्थ तो 0.45।
right? So these are the dimension I required in initial stage. Why this 4.75 meter I required? Because that is the height of retaining, height of backfill, right? So this is my heel part. ये पूरा मेरा heel part है जिसकी मुझे डिजाइन करनी है. Now which are the load acting on the heel part? So that we will first consider. The load acting on the heel part is, the very first load acting on heel part is my backfill load. बराबर, बैकफिल का लोड है यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे बैकफिल है, ठीक है. सो ऑल दिस इज माय बैकफिल लोड. क्लियर एवरीवन? हील के ऊपर बैकफिल है पूरा, Yes, ma'am. राइट. तो बैकफिल लोड. देन सेकंड लोड इज माय सेल्फ वेट ऑफ द हील इटसेल्फ, सेल्फ वेट ऑफ द हील इटसेल्फ, राइट. तो ये है मेरा सेकंड लोड. Then third type of load on the heel is the pressure, right? तो कौन सा pressure? Uplift pressure. So I have this pressure diagram और हमने ये वैल्यू भी फाइंड किया है, P maximum and P minimum. Right now we require P minimum at the initial stage. Can anyone tell me what was P minimum? 30.16. 0.16, राइट. P मैक्सिमम अभी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो हील पार्ट है इसको एक्सटेंड यहाँ पे करना है, तो इतना ही हमारा अपलिफ्ट प्रेशर आएगा हील में टू दिस, राइट. सो दिस इज द पोर्शन आई रिक्वायर्ड फॉर द हील स्लैब, ठीक है. तो इतना ही मुझे चाहिए. नाउ कैन एनीवन फाइंड दिस हाइट? Can anyone find this height? And that's why, remember, I have in my recording picture 84.46. आप एक बार चेक कर लेना. So this height is 84.46 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एक बार चेक कर लेना आप लोग भी. हाँ, सेम ही आएगा, बट वंस चेक. So these are the loads which are acting on my heel slab. Clear everyone? Yes. Right. तो ये इस तरीके से है. तो ये पूरा जो मैंने अभी किया ये सब अपलिफ्ट प्रेशर है. सो दिस विल एक्ट एट द अपवर्ड साइड, और जो डाउनवर्ड एरो है दैट आर द डाउनवर्ड फोर्स विच आर एक्टिंग ऑन द heel slab. And by doing this, and if the load apply on this, then your heel slab will deflect like this. ठीक है. So if heel slab deflect like this, then tension is at top, compression will be at bottom. And this heel slab again behave as a cantilever slab, क्योंकि देखो ये यहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ पे स्टैम है इसलिए, और यहाँ पे ये साइड पे वो फ्री है, राइट. सो ऑल द फोर्सेस or the maximum moment will act at this point. This point is nothing but C point. अगर आपको याद हो, आगे मैंने पहले आपको 4 पॉइंट दिखाए थे. If you remember, A point will be at this,
मतलब स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए यू रिक्वायर्ड टू टेक ऑल द मोमेंट एट ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट। स्टेम डिज़ाइन के लिए यहाँ पे आपको मोमेंट लेनी है, हील स्लैब के लिए सी पॉइंट पे लेनी है। सो दिस इज माय सी पॉइंट। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes. So for heel slab design, you require to take all the moment at point C, and due to that moment, your heel part will deflect like this. Tension will be at top, compression will be at bottom. So by finding the moment and finding the reinforcement, the main reinforcement you are going to provide in the heel slab is at the top, और compression के reinforcement आप bottom में provide करोगे. Now how to find this moment? For this moment also you require to prepare this type of table, right? तो आपको table कैसे बनाना है? Right, so very first is first we will take, यहाँ पे मैं ले रही हूँ कंपोनेंट, उसके बाद हम क्या लेंगे, वेट ऑफ कंपोनेंट इन किलो न्यूटन चाहिए हमें, वेट हर वेट हमें किलो न्यूटन में चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी, और लास्ट में क्या आएगा, मोमेंट एट पॉइंट सी। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. चलो पहले हम क्या लेंगे, बैकफिल ले लेते हैं। चलो फर्स्ट वी विल टेक बैकफिल। फर्स्ट कंपोनेंट इज बैकफिल। व्हाट इज यूनिट वेट ऑफ बैकफिल इन किलो न्यूटन? बैकफिल का वेट कैसे फाइंड करेंगे, डेंसिटी इनटू एरिया। सो डेंसिटी इज 18, बैकफिल का डेंसिटी हमें लेना है, तो 18 इंटू, अभी एरिया क्या होगा, 1.8 मीटर बाय 4.75 मीटर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1, ये लेंथ व्यू है, मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर के लिए आप डिज़ाइन करते हो। चलो व्हाट इज दिस वेट इन किलो न्यूटन, थोड़ा जल्दी कर लेना। Fifteen point 153.9. 153.9 किलो न्यूटन, राइट। नाउ हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम सी पॉइंट। चलो डिस्टेंस फ्रॉम सी क्या होगा, ये है पूरा आपका बैकफिल का, ये है डायमेंशन आपका, दिस इज 4.75 एंड दिस इज 1.8। तो इसका सी जी कहाँ पे होगा, सेंटर, राइट। तो 0.9 मीटर। चलो मोमेंट क्या आएगी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो 153.9 इंटू 0.9, 138.51. 138.51। 38.51. चलो ये यूनिट किस में होगा, किलो न्यूटन इंटू मीटर में। अभी देखो ये है आपका बैकफिल, राइट, और ये है आपका सी पॉइंट। दिस बैकफिल विल गिव विच मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट। बैकफिल डाउनवर्ड फोर्स है, वो सी पॉइंट पे क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, सो आई एम ड्रॉइंग दिस क्लॉकवाइज ओवर हियर। क्लियर एवरीवन? Yes. चलो अभी नेक्स्ट कौन सा है फोर्स हमारा, डाउनवर्ड फोर्स पहले कर लेते हैं। सो नेक्स्ट विल बी द सेल्फ वेट ऑफ हील स्लैब। सो हील स्लैब, चलो क्या होगा सेल्फ वेट ऑफ हील स्लैब, सेल्फ वेट ऑफ हील स्लैब इज डेंसिटी, डेंसिटी इज 25 बिकॉज रेनफोर्स कॉन्क्रीट एलिमेंट है, ठीक है। फिर उसका क्या होगा, एरिया 1.8 मीटर लेंथ है,
और 0.45 मीटर उसका डेप्थ है, ये जो मैंने ब्लू कलर से हेच किया है वो। क्लियर? यस। और 1 मीटर। चलो 20.25। 3.25. 20.25। चलो उसका CG डिस्टेंस क्या होगा C से? इसका CG डिस्टेंस C से Okay. हाँ सेम। सेम 0.9, हाँ, राइट। सो 1.8 डिवाइड बाई 2.9। चलो मोमेंट फाइंड कर लो। 18.225. किलो न्यूटन इंटू मीटर। और ये कौन सी मोमेंट होगी इसके लिए भी? क्लॉकवाइज। चलो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अपवर्ड फोर्सेस। हमारे डाउनवर्ड फोर्सेस सब कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग टू अपवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड फोर्सेस क्या है? देखो ये है ट्रेपेजोइडल एरिया। अप बराबर। तो ट्रेपेजोइडल को मैं डिवाइड करती हूँ 1 ट्राइंगल एंड 1 रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये ऐसा मैंने कर दिया, 1 ट्राइंगल एंड 1 रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये कितना होगा मेरा? 30.16। ठीक है, और ये कितना होगा? 84 माइनस 40, 84.46 माइनस 30.16 कितना आता है? 54.3। हाँ 53. 54.3। 54.3। ठीक है, चलो दोनों अपवर्ड फोर्स है। तो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का देखो ये है प्रेशर की वैल्यू किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा? किलो न्यूटन में फोर्स। ये जो लेंथ है, ये लेंथ है मेरी 1.8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दैट प्रेशर, सॉरी अपलिफ्ट प्रेशर लिखते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर। पहले हम ले लेते हैं रेक्टेंगल। तो क्या होगा उसका प्रेशर की वैल्यू क्या है रेक्टेंगल की? 30.16। ये है मेरा किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो दिस मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? 1.8 और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? 1। ये प्रेशर भी थ्रू आउट लेंथ में होगा। क्लियर एवरीवन? यस मैम। चलो कितना आएगा ये? हाँ 54.29। 54.29। 54.29 किलो न्यूटन। चलो अभी इसका CG डिस्टेंस फ्रॉम C पॉइंट, ये C पॉइंट आपका यहाँ पर ही है, क्या होगा? सेम सेम होगा। ये यस है, मैम। ये है पर C पॉइंट मतलब ये है पूरा, ये C भी है। ठीक है, तो वो उसका हाफ होगा 0.9। नाउ सी दिस, दिस इज अपवर्ड फोर्स, दिस इज पॉइंट C। दिस फोर्स विल गिव विच मोमेंट? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। आर यू गेटिंग दिस? अपलिफ्ट प्रेशर विल गिव एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। चलो 54.29 इंटू 0.9, थोड़ा क्विकली। 48.86। 48.86 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी। राइट। चलो अभी हम लेंगे ट्राइंगल। राइट, ट्राइंगल का क्या होगा? ट्राइंगल का एरिया 1/2, ये है मेरा ट्राइंगल, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर है 54.3 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 54.3 इंटू 1.8 टू 1। चलो कितना होगा? 48.87। 48.87। चलो उसका CG डिस्टेंस बेस से कितना होता है? B/3।
अच्छा है। b/3 राइट, तो मतलब 1.8/3, चलो कितना है 0.6, चलो ये कितना आया मोमेंट, 29.3 हाँ 29.32 29.6 kilonewton into meter, और again it will give the anti-clockwise. Clear everyone? Yes, ma'am. चलो अभी क्या करना है हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सबको मिला के वी रिक्वायर टू फाइंड द रिजल्टेंट मोमेंट. रेजिस्टिंग मोमेंट नहीं है, दिस इज रिजल्टेंट मोमेंट, राइट. तो 138.51 तो वो होगा पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव. तो चलो प्लस प्लस माइनस माइनस करके फाइंड आउट रिजल्टेंट मोमेंट. 78.55 78.55 kilonewton into meter, right. So this is my resultant moment for the heel sled. Okay everyone, so we will continue this in next lecture. Once now the moment is there, now you require to do the factor moment, you require to find the reinforcement, and that reinforcement you will going to provide at the top of the heel slab. Clear? यस मैम. ठीक है, Yes. चलो we will continue this in next lecture. And if you Okay, have ma'am. any doubt, you can write it down in chat box. I will answer. Otherwise, we will discuss in next lecture. ओके मैम.